सो इंटीग्रेशन द सिंबल है ठीक है। तो अगर बेटा dx dt dz dy कुछ भी लिखा हुआ जितना ना dx लिखा हुआ dv लिखा हुआ dt लिखा हुआ dz लिखा है एंड सो ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ x y z t v ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਬਲਸ ਹੈ। तो ਜਦੋਂ x ਦੇ ਅੱਗੇ d ਆ ਗਿਆ dx ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਚੇਂਜ ਇਨ x उस क्वांटिटी च होने वाली बहुत है ना। तो ये dx है पर ਜਦੋਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾਤਾ मतलब ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ it would become x चेंज खत्म कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा dv जे आगे अगर इंटीग्रेशन साइन पाता तो इसका आंसर v हो जाएगा। dt जे आगे इंटीग्रेशन साइन पाता तो t हो जाएगा। dz जे आगे पाता था z हो जाएगा। ठीक तो आज ये ना dx dv dt ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੈਂਡ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੈਂਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ x ਲਈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ v ਲਈ p ਲਈ z ਲਈ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲਈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋੜਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ dx ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ t v ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ x ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ dx ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਲ ਕੌਣ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ x तो x dx ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ठीक है। तो आ पावर अंडरस्टूड है 1 है। अच्छा x dx नहीं है x स्क्वायर dx है इनको इंटीग्रेट करना इतना भी तो हो ही सकता है। इतना भी हो सकता है। ਹੁਣ अगर ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ मैं x raised to power n dx ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਨਰਲ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ये रिजल्ट्स मेरे को पिछों आए हैं जिन्होंने तो मैथमेटिक्स पढ़ना उन्होंने तो मैथ उन्होंने रिजल्ट्स दसने भी है कितना आए हैं पर जिन्होंने मैडिकल किया उन्होंने ये जरूरी नहीं है फिजिक्स भी नहीं जरूरी सानू रिजल्ट्स चाहिए सिर्फ। तो x रेज़ टू पावर n dx ਨੂੰ इंटीग्रेट करने का रिजल्ट की बनेगा वो बनेगा x और जो पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी बाय 1 और नीचे इंक्रीज्ड पावर पूरी लिखनी है। पर ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਨਰਲ ਇਹ ਹਰ ਕੇਸ ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ n1 ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ n ਇੱਥੇ -3 ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ बस n
-1 नहीं होना है ना। तो मैं दस में आराम ना, कोई गल नहीं। हुण देखो सोच के देखो, जे n -1 होए तां तुसी इनू इदां लिख सकते हैं, क्योंकि जिसकी पावर ऊपर माइनस है नीचे आके प्लस हो जाए। तो इस केस ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ -1 ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? तो ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ log x। तो log ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ log ਹੁੰਦਾ log10, ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕ log ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਮਨ log ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ loge ਜਾਂ ln। ਇਹ ਜਿਹੜਾ log ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ log। क्लियर क्यों है? सारे बीजेपी वाले ने वैल्यू कर दी है। इधर निकल दी नहीं? चारों पासे जो मर्जी ऑफिस में सारे पासे रखते बाकी कोई नहीं। तो हुन ये जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट है, वाला रिजल्ट ये सिर्फ कदों मदद करेगा जदों असी किहनू इंटीग्रेट करना 1/x dx नू, है ना। पर जे x dx नू करना, x² dx नू करना, x की पावर -3 dx नू करना, फिर सानू आ फार्मूला हेल्प करेगा। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇੱਥੇ ਸੋਚੋ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। x dx ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣੇਗਾ x 1 + 1 / 1 + 1। ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? 2 + 1 / ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? और इनू तुसी 1 / आ माइनस साइन वाला 2x² इधर भी लिख सकते हो। ऊपरों नीचे को ले आना था, पावर तो हो जाती नीचे तो हुन इस पूरी डिस्कशन नो आराम दे नाल कितना समझना पुत्र, जे तुसी इंटीग्रेशन करनी है dx दी, कल्ला dx है ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ dx ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਾਹਦੇ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ? x। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੇ ਆ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓ ਪੁੱਤਰ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ dx ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ। ਤੇ 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਫਾਰਮ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਇਹ 0 + 1 / 0 + 1 x1 / 1 मतलब पहला x ही आ गया। ये थोड़ा लंबा हो गया, डिटेल जो भी गल। तो जे ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, dx ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, dx ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? x। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ dx ਦੇ ਨਾਲ x ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ dx ਦੇ ਨਾਲ x² ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ dx ਦੇ ਨਾਲ x ਦੀ ਪਾਵਰ -3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਕੜਨਾ ਪੈਣਾ। तो
ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n dx ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ x n plus 1 over वो इतने अप्लाई कर x की जो पावर है मतलब उसमें +1 करना होगा। हाँ +1 और नीचे भी है ना। अच्छा पर ये फार्मूला जड़ा वो सिर्फ x रेज़ टू पावर n नॉट इक्वल टू -1 उत्ते नहीं आने लगना। मतलब जे x की पावर -1 है तो आ बन गया तो एरा इंटीग्रेशन का रिजल्ट इस इथों नहीं आना। देखो क्योंकि ये अकॉर्डिंगली ये चेक करो तो x की पावर -1 + 1 0 है ना। तो ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਬਣਨਾ log x। ਸੋ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥਰੂ ਆਊਟ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। तो ये नोट करो फिर आप इसको अप्लाई करना सीखने दो। सर वो दूसरे फॉर्मूले की log की वैल्यू नहीं ठीक है log की वैल्यू नहीं log x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਲਾ log ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ log x ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲੇ sin ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੈਲਿਊ sin 60 ਡਿਗਰੀ sin 30 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੱਲੇ log ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ log x और x ਕਿੰਨਾ ਵਾ 1 ਹੈ 2 ਹੈ 2.5 ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਆ। तो ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ x ਦੀ ਟਰਮ ਚ ਵੇਰੀਏਬਲ x तो dx ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਦਿਸ ਵਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੈਂਡ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਟਰਮ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਗਿਆ ਇਦਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲਿਖੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊ log t है ना। ਤੇ ਜੇ ਆਇਆ ਕੀ ਆਊ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ 3/2 over पता लगा। तो इनू सॉल्व करने में ये काम आना था समझ आई गल हुण याद रहूगा रखना पैना। हुण थोड़ा जिहा मॉडिफाई करते देखो मान लो मेरे सामने लिखे आ गया 5x dx तो इन्हें क्या भी इंटीग्रेशन करो और इन्हें क्या केदे लिए करो x लिए करो। तो आ भी x ही है विच आ टर्म आ कांस्टेंट है एक नंबर है ये इंटीग्रेशन दे अंदर है। तो इंटीग्रेशन कहती है कि कांस्टेंट नु तुसी बाहर कढ लेना उस तो बाद बचे दी इंटीग्रेशन कर और इथे केड़ा फार्मूला लगू आही लगू या जो
है ना, ठीक है। तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਦੋ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਆਣਾ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਣਾ, ਮਤਲਬ 90% ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਲੈਵਲ। तो ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਲਿਖੋ ਹੈਡਿੰਗ। क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करन लगे किस तरह सोचना। हेलो खुशी, नहीं एक मिनट, किस तरह करना है इसका समझ आया ना किस तरह करना है? जैसे हमने पिछला जवाब था मैं तो कहती तू दस तेन याद नहीं, समझ नहीं आया क्वेश्चन ही नहीं समझ आया, काम मेरा सौखा है। तो क्वेश्चन सी कि जो असी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन उन तक मैकेनिक्स के डिफरेंट डेफिनेशंस कीतियां हों, वो पता वा कि एक दूसरे तो कितना अलग है, स्पीड और एवरेज स्पीड का फर्क की है, वेलोसिटी और एवरेज का की फर्क है, एवरेज एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन की डिफरेंस है ना, वो पूछ रहे हैं। तो जे नहीं पता एक बार और रिवाइज करो क्योंकि अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हुन हेडिंग लिखो टाइप्स ऑफ मोशन। हुन सानू ये तो आइडिया हो चुका बेटा कि जदों कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस अपनी पोजीशन बदलती है तो असीं कहते हैं कि वो मोशन च है, ते जे पोजीशन ना बदले तो रेस्ट ते। पर हुण जिहड़ा मोशन भी है, मतलब तुहाडे सामने चलती हुई बॉडी, ਉਹਦਾ मोशन कितनी तरह का हुंदा, तो लिखो टाइप्स ऑफ मोशन च बेटा यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈ। तो मेन करेक्टरिस्टिक यूनिफॉर्म मोशन का है कि ਅਸੀਂ देख रहे हैं कि बॉडी मूव कर रही है और मूव कर रही उस बॉडी की जिहड़ी वेलोसिटी है वो शुरू तो लैके एंड तक इक्को जी रहिंदी है, उस कोई चेंज नहीं आती। मतलब उस वेलोसिटी का मैगनीट्यूड, स्पीड ते उस वेलोसिटी की डायरैक्शन जिन्होंने डायरैक्शन ऑफ मोशन कहने हैं, वो दोनों चेंज ही नहीं हो रहे, उन्होंने कोई चेंज नहीं आ रही, वो सेम रह रहे हैं। तो असीं कहना भी ये मोशन की है यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन की पहचान की है कि वेलोसिटी हर वक्त की रहेगी कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहे तो एक्सेलरेशन पैदा होती है। एक्सेलरेशन कदों पैदा होती है? जदों वेलोसिटी चेंज करती है। तो यूनिफॉर्म मोशन च वेलोसिटी की है, तो इसका मतलब एक्सेल वेलोसिटी चेंज होगी। है ना? तो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ
सॉल्व नहीं हो रही, उस प्रॉब्लम च लिखता कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ਤਾਂ ਜਦੋਂ मैं ये लाइन पढ़ ली तो अगर मैनू थ्योरी के कंसैप्ट्स याद है तो उस वक्त मेरे दिमाग च सिग्नल जाने लग पैने हैं कि एक्सेलरेशन है नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट है। हुण अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो नाल ही अगला मैसेज ये भी जाना कि स्पीड भी नहीं बदल रही, कि डायरेक्शन ऑफ मोशन भी नहीं बदल रहा। नाल है भी मैसेज है। और अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन ना बदले तो बॉडी केड़ा पाथ फॉलो करती है? हाँ, स्ट्रेट पाथ इज फॉलोड। मतलब 1D मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन 1D मोशन। अच्छा, और अगली इंटरेस्टिंग गल की है पुत्र, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब की है कि आप लीजिए कि T20 मैच है, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਕੋਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੇਖੀਏ कि पहली बॉल से स्कोर नहीं होया, दूसरी पे हो गया, तीसरी पे विकेट चला गई, चौथी पे फिर हो गया, 2 दिन स्कोर हो गया या 6 हो गया, इतना होगा। पर जे आइडियल सिचुएशन कि जे मान लो T20 मैच हो रहा और हर बॉल पे चौका ही पै रहा, पहली बॉल पे भी, दूजी पे भी, तीजी पे भी, चौथी पे भी, पंजवीं पे भी, छेवीं पे भी, अगले ओवर च भी, तो कहना पूरे मैच दे विच हर बॉल पे 4 स्कोर हो रहा, इट मीन वो यूनिफॉर्म मतलब एवरेज हो गया ना एक तरह का कंसेप्ट। या हर बॉल पे 1 स्कोर ही हो रहा, या हर बॉल पे 2 स्कोर ही हो रहा। तो हुण देखो, नोट करके देखो कि आप 20 ओवर तक नहीं जाते, 2 ओवर तक ही रहने। हुण अगर 2 ओवर का मैच है ते हर बॉल पे 2-2 स्कोर हो रहा, तो टोटल स्कोर कितना होएगा? 24। तो रन रेट कितनी होगी? 12 की। 2 ओवर 24 स्कोर, 1 ओवर 12 स्कोर। और तुसी नोट कर लो एवरेज भी 12 ही आई, और एक पहले ओवर च भी 12 स्कोर ही पिया, अगले ओवर च भी 12 स्कोर ही पिया। मतलब यूनिफॉर्म मोशन का पहचान किया है कि हर वक्त बॉडी की वेलोसिटी और पूरे मोशन की एवरेज वेलोसिटी की आएगी? सेम आएगी। अदरवाइज वेलोसिटी की डेफिनेशन अलग है, एवरेज वेलोसिटी की अलग है, पर यूनिफॉर्म मोशन च वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी हमेशा इक्वल होंदे है। ਇਹਦਾ मतलब यूनिफॉर्म मोशन ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ वेलोसिटी ਨੂੰ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम भी कह सकते हैं। क्यों? उतना वेलोसिटी की होती है dx by dt, और एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। पर यूनिफॉर्म मोशन च वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी हर वक्त सेम रहने हैं, तो इस करके वेलोसिटी ਨੂੰ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम तो भी कटिया जा सकता, मतलब वो ऑप्शन भी साडे कोल है। पर ये सिर्फ गल कितने लिए ट्रू है? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की पहचान दसी है? वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ना स्पीड बदल रही है ना केड़ा पाथ फॉलो कर रही है। अच्छा, और इतना ही यूनिफॉर्म मोशन च स्पीड ते एवरेज स्पीड भी हमेशा बराबर है। हर वक्त की स्पीड और पूरे मोशन की एवरेज स्पीड की वैल्यू सेम रहेगी। अच्छा, फिर बेटा किसी भी तरह के मोशन ले, किसी भी तरह के मोशन ले स्पीड कौन है? वेलोसिटी का स्पीड कौन है? मैग्नीट्यूड ऑफ। जो मैं वैक्टर के आले दुआले 2 लाइनां पातियां मॉड, इट मीनस ਉਹਦੇ मैग्नीट्यूड की
गल हो। तो आ जिहड़ा रिजल्ट है ये हर तरह के मोशन लई एप्लीकेबल है, ये जरूरी नहीं यूनीफॉर्म मोशन हो। पर तुहानू याद होएगा एक हुंदी है एवरेज स्पीड, और आपां ये न्यूमेरिकल्स तो भी देखिया सी और डिटेल डिस्कशन तो बाद देखिया सी कि वेलोसिटी दा मैग्नीट्यूड हमेशा स्पीड है, बट एवरेज वेलोसिटी दा मैग्नीट्यूड हमेशा एवरेज स्पीड नहीं है। याद है? देखो तो कितने पीछे नजर आ रहा है ना, याद रखना। पर यूनिफॉर्म मोशन च यूनिफॉर्म मोशन अगर है, अगर मेरे कोई कहे कार की वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, इसका मतलब उस कार की एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के बराबर ही आएगा, वो फर्क नहीं हो सकता। ये करैक्टरिस्टिक्स है कि यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की पहचान है। तो बाकी आ सारे एडिशनल फैक्टर्स है ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इजी हो जाए साडे। अच्छा, और एवरेज स्पीड यूनिफॉर्म मोशन एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर क्यों है? क्योंकि वैसे तो डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड तो ज्यादा भी हो सकती है, बराबर भी, पर यूनिफॉर्म मोशन च डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होनी है, बराबर। क्योंकि बॉडी ने केड़ा पाथ फॉलो करना है यूनिफॉर्म मोशन के स्ट्रेट। इस करके हुण जदा तू इत्थे खड़ी है, जे तेरा मोशन यूनिफॉर्म है तो तू इधर सीधा जाएगी, और ऑप्शन नहीं ना है। जे तू इधर ऊपर घूम के गई फिर बट सर रियल लाइफ थोड़ी पॉसिबल है। रियल लाइफ तेरी कार हो या कुछ है, रियल लाइफ च तू सीधी चलदी नहीं करे, अच्छा हमेशा ऐ थोड़ी चलदी है, नेगेटिव जल्दी हैं? करती है। देखो तो अगर असी यूनिफॉर्म मोशन की गल करते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन हमेशा अलोंग ए स्ट्रेट पाथ होना वा, और स्ट्रेट पाथ के ऊपर अगर बॉडी सीधी जा रही है तो ਉਹਦੀ इनिशियल ए और फाइनल बी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस कवर्ड है वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बराबर ही रहना वा ना, क्योंकि तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ यूनिफॉर्म मोशन बारे लिखे। पर ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऐड करिए ਆਪਾਂ कुछ और ਗੱਲਾਂ मैथमेटिकली, ये ਆਪਾਂ सारी किहदी डिस्कशन कर रहे हैं? यूनिफॉर्म मोशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं हेडिंग। यूनिफॉर्म मोशन की पहचान पता लग गई? ये पहचान हाँ, सिर्फ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो तो बेसिक है ना, एक्सेलरेशन जीरो। तो बाकी यूनिफॉर्म मोशन की प्रॉब्लम नु सॉल्व करते वक्त ਅਸੀਂ वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी मिक्स कर सकते बराबर करके, मतलब अदरवाइज नहीं, ਅਸੀਂ अदरवाइज वेलोसिटी नु डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम लिखांगे गलत हो जाएगा। बट यूनिफॉर्म मोशन च क्योंकि एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी बराबर है तो वेलोसिटी नु ਅਸੀਂ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम लिख सकते हैं। तो ये लिबर्टी इतने मिलनी है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद होना। हुण देखो इनू थोड़ा जिहा हम मैथमेटिकली आइए, हो चुका ना बोर्ड? आ देखियो यूनिफॉर्म मोशन की गल हो रही है, एक्सेलरेशन है नहीं, जीरो है, ते वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। तुसी हुण इहनू इधर देखना, हाले ये सारा कुछ ना एक दूजे नाल रिलेटेड है। अगर थानू मैं कहां एक हुंदी है डिफरेंशिएशन और दूसरी हुंदी है इंटीग्रेशन, ये दोनों एक दूजे दे की हुंदे हैं, उल्ट हुंदे।
ठीक है। अच्छा हुण देखियो, अगर मैं कहां आ कांस्टेंट है, सी का मतलब कांस्टेंट, तो जे मैं कहां इधर लिखना, इसका मतलब मानो की क्या जा रहा है, कांस्टेंट नो की आंसर आंदा 0 है ना। ਇਹਦਾ मतलब ਜੇ कांस्टेंट ਨੂੰ डिफरेंशिएट किया जाए तो आंसर 0 है ना, इतना गए आप। ते हुण डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, ਇਹਦਾ मतलब कांस्टेंट ਨੂੰ डिफरेंशिएट किया आंसर 0 है, तो फिर 0 ਨੂੰ इंटीग्रेट किया तो आंसर कांस्टेंट आना चाहिए, उल्टा ना। तो ਇਹਦਾ मतलब जे कांस्टेंट ਨੂੰ डिफरेंशिएट करोगे आंसर 0 है, तो जे 0 ਨੂੰ इंटीग्रेट करांगे तो आंसर कांस्टेंट। ठीक होई गल। कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता, 0 भी हो सकता, 1 2 3 भी, मतलब कांस्टेंट आप अगे 0 भी हो सकता, नॉन 0 भी। तो हुण इधर आओ, यूनिफॉर्म मोशन च एक्सेलरेशन की है 0 है। हुण एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का कोई रिलेशन पढ़िया सी तुसी, डेफिनेशन ते पढ़ वेलोसिटी का ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ वेलोसिटी को चेंज आएगा फिर जाके ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਨਰਲ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹਲੇ। वैसे कोई एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का रिलेशन पढ़े, वेलोसिटी और टाइम, कोई फार्मूला एक्सेलरेशन की करते हैं पिछे जे पढ़िया कोई एक्सेलरेशन बारे किते लिखिया होया, वेलोसिटी और टाइम एक्सेलरेशन लिखिया कापी दे और पढ़ ला, ठंड लगेगी। एक्सेलरेशन में की लिखते हैं dv अपॉन लिखते हैं, मैं आई पूछने एक्सेलरेशन का वेलोसिटी का की रिलेशन है, ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ मैं dv अपॉन dt लिख सकदा ए दी जगह ते कि नहीं, लो लिखता जी। यूनिफॉर्म मोशन राइट साइड ए की है 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो dv की हो गया 0 नाल जेने भी जाके मल्टीप्लाई होना उन्हें हो गया। हुण की करिए, इंटीग्रेट करना। हुण गल सुनियो,